فرما محترم محترم علماء اہل سنت، باوقار سامعین کرام، گھروں میں بیٹھ کر میری آواز سننے والی خواتین اہل سنت، پیش کرتا ہوں محبت بھرا سلام، دیجیے اس کا جواب آپ تمام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ستل بانی لوگن کی جاگل بنی تنی جاگل نہیں، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ وطبیبہ وطبیبہ الکریم الغفار الستار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، شہا بےکس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شفا، حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں، اور یہ شفا زمانہ زمانے مدد نما درہائی بستارہ سے کلید کرم گشا، اور بگرتا بھی بلا افتادہ کشتے ضعیفان شکر سارا تو گشتے، اور بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتے، یا شہید کربلا، یا دافع کرب بلا، گل خواہ شہزادہ گل گلگو قبا، امداد کن مرتضی شیر غدا، مرحب کشا خیبر کشا، سربراہ لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن، اس زنا یا حفظنا یا کنزنا یا کفوزنا، لیثنا یا غیثنا یا غوثنا امداد کن۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا مجمع، پوری بیداری، پوری ذمہ داری اور انتہائی خلوص اور عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم کر دل لگا کر، جس کے پاس جتنی آواز ہے اس آواز کا استعمال کیجئے، دل لگا کر جھوم کر پڑھیے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی ہم نہیں شروع ہوئے ہیں کہ بھائی صاحب شروع ہو گئے ہیں، اب اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے، ایک ہی دانا مگر بہلول دانا چاہیے۔ مائک سے والے سے ہماری شکایت یہ ہے کہ آپ کچھ کیجئے میرے لیے، یہ 20 روپیہ آپ کو ہم دے کے جائیں گے، 4 بجے تک انشاءاللہ آپ کو دے کے ضرور جائیں گے، لیکن 4 بجے ہم ملیں گے تب نا۔ بنائیے، تھوڑا سا بنائیے، محنت کیجئے۔ اگر آج آپ نے اچھا بجا دیا تو سمجھئے کہ سال بھر آپ کو ساٹے سے فرصت نہیں ملے گی۔ مشین بہت اچھی ہے، آہوجہ کمپنی کی ہے نا۔ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، تمام علماء کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، سب ہم سے سینئر اور بڑے اور قابل احترام ہے۔ خصوصیت کے ساتھ مطاہر خیر الانام، طوطی سارن، محب گرامی وقار، پیکر خلوص و وفا، حضرت حافظ وقاری شوکت صاحب قبلہ، جن کی مدبھری آواز، مخملی آواز، ترنم کے گلے کے ہار اور اس آواز کو آپ نے ملاحظہ کیا ہے، اللہ ان کی آواز و انداز میں برکت عطا فرمائے، علم و عمل میں اضافہ فرمائے، عزتوں کا مالک عزتوں سے نوازے۔ آج مجھے بالکل یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کسی جلسے میں نہیں، بزم نعمت میں بیٹھے، اس لیے کہ یہ طالبان علوم نبوت کا ایک دور تھا جب ہم لوگ ایک ساتھ پڑھ کر کے جمعرات کی شام کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے ذکر رسول کیا کرتے تھے، اور
آج وہ باتیں یادیں ذہن فکر میں گردشیں کر رہی ہیں. مولا تعالیٰ ہم تمام ساتھیان کرام کو دوستوں احباب کو مولا سلامت رکھے. خصوصیت کے ساتھ ہمارے دائیں طرف پیکر خلوص و وفا محب گرامی ساتھی محترم حضرت حافظ وقاری اعجاز صاحب قبلہ پرنسپل مدرسہ حنفیہ یہ تشریف رکھتے ہیں. ہمارے بڑے بھائی علاء الدین صاحب قبلہ دھنبادی مراد آبادی، ہمارے نقیب اعظم ہندوستان نقیب اہل سنت پیکر شیر و سخن نازش علم پن حضرت حافظ وقاری نصیب الدین صاحب قبلہ، ہمارے بہت پرانے دوست 2017-18 کی ملاقات کے بعد یعنی 3 سال کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد شہنشاہ ترنم بادشاہ ترنم حضرت دلکش رضا مظفر پوری سے ملاقات ہو رہی ہے. بہت اچھا کلام آپ نے محسوس کیا ہے. ہمارے شاعر بے دھڑک محمود عالم صاحب قادری، چہرہ پہچاننے میں ایک دم دشواری نہیں ہوگی. جب آپ پہچانیں گے دیکھیں گے چہرے میں نزاکت جیسے ہی آپ دیکھیں گے سمجھ جائیے کہ محمود صاحب ہیں. اور جڑوا شاعر کی حیثیت سے سارن بھر ہی نہیں پورے بہار کا دورہ کرنے والا اور بھرمن کرنے والا شاعر شاہد و عابد کو آپ نے فرسٹ راؤنڈ میں ملاحظہ کر لیا ہے. میرے بعد ہو سکے تو آپ لوگ ان کو پھر محسوس کریں گے. بہت اچھا سنا ہے. دیگر احباب ہمارے موجود ہیں اور میں بہت مشکور ممنون ہوں رضا کمیٹی اور ان کو ایک دھاگے میں سمیٹ کر لے کے چلنے والے محب گرامی وقار عالم گامل عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حامد صاحب قبلہ، جنہوں نے رضا کمیٹی کا گٹھن کیا، مسجد اور مدرسے کے لیے بے پناہ قربانیاں پیش کی اور بہت اچھے انداز میں اس محفل پاک کا اہتمام اور انتظام کیا. مولا تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی شرکتوں کو قبول فرمائے اور ان کی محنت و مشقت اور کوشش و کاوش کو مولا قبول فرمائے. میں نے محسوس کیا کہ یہاں کی چند بچیاں جو نعت پڑھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا ان کے رگوں میں عشق رسول کا جو خون بھرا جا رہا ہو. یہ امام صاحب کی محنت ہے. ان کے دل و دماغ میں اسلامی لٹریچر اور اسلامی خیالات اور فاطمہ الزہرا کی زندگی کا نمونہ جو پیش کر رہا ہو وہ امام صاحب کی محنت ہے. جو آپ کی بچیاں گانا گانے کی بجائے نعت نبی کے اشعار ترانے پڑھ رہی ہیں یہ امام صاحب کی کوشش کا نتیجہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں مولوی کیا کرتا ہے، مولوی 5000 کی تنخواہ لیتا ہے، 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، پھر جاتا ہے ٹیوشن پڑھاتا ہے. اے جناب آپ کو محسوس نہیں ہوگا 5000 کی تنخواہ دیتے ہیں. وہ صبح 4 بجے اٹھتا ہے، آپ کے بچوں کے فکر میں لگا رہتا ہے کیسے میرے مدرسے کے بچے آگے بڑھ جائیں، کیسے میں انہیں دینی مسائل سکھا دوں، کیسے میں انہیں دینی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کر دوں، کیسے میں انہیں مصطفیٰ کا غلام بنا دوں، کیسے میں آپ کے سماج اور آپ کے گاؤں کی بچیوں کو میں فاطمہ الزہرا کی چادر کے نیچے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دوں. یہ امام صاحب کی زندگی ہوا کرتی ہے. امام صاحب 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، پھر اس کے بعد جب جیسے موقع ملتا ہے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے 5000 سے کسی کا کیا گھر چلے گا، 50,000 کی نوکری کرنے والا آج بے چین و بے قرار نظر آتا ہے. 1 لاکھ کا پیمنٹ پاتا ہے، سرکاری سیلری ہے، لیکن پھر بھی من نہیں بھرتا ہے، پھر آؤٹ انکم کی تلاش میں رہتا ہے. لیکن یہ علماء کرام صبر و تحمل کا لبادہ اوڑھ کر آپ کے بیچ دین و ملت کا خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں. یہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں لیکن آپ کے بچوں کو تعلیم و تربیت کے راستے پر لا کے کھڑا کر کے آنکھوں میں مصطفیٰ کا نظام، ہاتھوں پہ مصطفیٰ کے نظام کی ہتھکڑیاں، پاؤں میں قرآن پاک کے قانون کی بیڑیاں، آنکھوں میں مصطفیٰ کی حیا کا کاجل،
लबों पे नबी का नगमा और पूरे वजूद को मुस्तफ़ा के गुलाम के सांचे में ढाल करके दुनिया वालों को ये बताना चाहते हैं कि तेरा बेटा गुलाम मुस्तफ़ा हो जाए, तेरा बेटा आज आशिक मुस्तफ़ा हो जाए, तेरा समाज मुस्तफ़ा के इश्क में ढल जाए, तेरा समाज का हर बच्चा सहाबा का वफादार हो जाए, तेरा बच्चा आशिक आला हजरत हो जाए। ये इमाम साहब की मेहनत हुआ करती है, ये उलमाए किराम की मिल्ली खिदमत हुआ करती है। हजरात, ये उलमाए किराम जिसको आप नजरअंदाज कर दिया करते हैं, ये उलमा क्या करते हैं, 10, 20, 100, 50 रुपए के चंदे से आपकी मस्जिदें तामीर करते हैं, मदरसे की तामीर करके मदरसे को परवान चढ़ाते हैं, फिर आपके बच्चों को परवान चढ़ाते हैं, फिर ये शबो रोज मेहनत करते हैं। आप नहीं समझ पाएंगे इनकी मेहनत, नहीं समझ पाएंगे इनकी मशक्कत। ये 2 गज के मुसल्ले पर रह करके, 2 गज की चटाई पर रह करके जो दीन मुस्तफा की खिदमत का अंजाम देते हैं और लोगों तक घर घर तक सुन्नत की बातें पहुंचाते हैं, ये उलमाए किराम का देन है, ये इनकी रहीने मिन्नत है कि आप तक दीन पहुंचा है, आप तक इस्लाम पहुंचा है, आप तक कुरान पहुंचा है, आप तक सजदों का तरीका पहुंचा है। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा, लेकिन आइए मामूल के मुताबिक और दस्तूर के मुताबिक मैं चंद बातें उलमाए किराम के हवाले से आप तक और आमद रसूल के हवाले से 2 शेर पढ़ना चाहता हूं। मेरी आवाज एकदम ऐसी नहीं है जैसे दिलकश मुजफ्फरपुरी पढ़ते हैं, लेकिन जितना मैं अच्छा पढ़ता हूं उतना कोई नहीं पढ़ता है। सुनना चाहेंगे? थोड़ा सा कुछ बनाइए ना, थोड़ा सा को दीजिए, रिपीट दीजिए। मिंबर पर जितने उलमाए किराम हैं, मैं इनके अस्माए गिरामी को अपने गले की तावीज बना करके और अपने सर का हार बना करके मैं आप तक पहुंच रहा हूं। ये शेर सुन ले और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सीटी क्यों मार रहे हैं? इतना बड़ा मजमा और इतनी कम आवाज, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अपनी आवाज को मजीद आप अपने दिल से निकालिए और दिल लगा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, ये लोग थोड़ा सा जागरूक हैं, उस मोहल्ले से आवाज आ जाए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। पीछे वाला टोला मोहल्ला, उसको टोला मोहल्ला कहने से अच्छा है उसको जिला घोषित कर देता हूं। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, निर्वाचन का जमाना है, उस जिले से आवाज आ जाए बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैं जहां बोलता हूं रंग में रहता हूं। थोड़ा सा कादरी रंग में आइए, मदनी रंग में ढल जाइए, दिल लगाइए, दिमाग लगाइए, इश्क लगाइए, खिराज अकीदत बोलकर हम तमाम लोगों को बता दीजिए कि आप सुनना चाहते हैं और हम सुनाना चाहते हैं। एक हाथ नबी के नाम पे, दूसरा हाथ अली के नाम पे, दोनों हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के रखे परवरदिगार, इन हाथों में कुव्वत अता फरमा, इन हाथों में मजबूती अता फरमा। ये हाथ किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को पटकने के लिए नहीं, किसी की गर्दन दबाने के लिए नहीं, माँ बाप का पांव दबाने के लिए, माँ बाप की खिदमत के लिए, माँ बाप की किफायत के लिए बना दे। ए मेरे परवरदिगार, इन हाथों की तमाम तर बीमारियों को दूर फरमा दे। और दोनों हाथों को लहराइए और झंडा बना करके बोलिए या रसूल अल्लाह। झंडा मदीने वाले का, डंडा बरेली वाले का, दोनों हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, अब लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है। जरा दिल लगाइए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खुशियों के गीत गाओ गाओ, खुशियों के गीत गाओ गाओ, खुशियों के गीत गाओ। रिपीटिंग और मिक्सिंग कर दीजिए, थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। खुशियों के गीत गाओ गाओ, खुशियों के गीत गाओ, खुशियों के गीत गाओ। जो सरकार आ रहे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशियों के गीत गाओ। ये 10 का नोट किसी कोने में सिमट जाए तो क्या होगा, किसी धागे से लिपट जाए तो क्या होगा। अब जमलची में बड़ा बेग लाने की जरूरत है। ये छोटा सा पार्टी
पॉकेट फट गया तो क्या होगा। बस इसी तरह से मिलते जुलते रहिए, हमें कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा। ये हमारे कमलेश भाई जो मुखिया प्रत्याशी हैं, बस इसी तरह से मिलते जुलते रहिए, बस आप लोग की मोहब्बतें मिलती रहें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। अभी हम पूरी तरह से शुरू नहीं हुए हैं, एकदम मुझे रंग में लाइए, थोड़ी देर की मोहब्बतें आपकी शिरकतें चाहिए। खुशियों के गीत गाओ, एकदम अच्छा क्लास का बोल रहा है। खुशियों के गीत गाओ, खुशियों के गीत गाओ। हसीब भाई आप बोलते क्यों नहीं है? खुशियों के गीत गाओ, खुशियों के गीत गाओ, जो सारे काफिर आ रहे हैं। खुशियों के गीत गाओ, खुशियों के गीत गाओ, सारे काफिर आ रहे हैं। खुशियों के गीत गाओ, खुशियों के गीत गाओ, सरकार आ रहे हैं। अरे नाते ना भी सुनाओ, नाते ना भी सुनाओ, सारे काफिर आ रहे हैं। सारे काफिर आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बाबू को पढ़ने लिखने में कामयाब देता है। अलाउद्दीन साहब मोहब्बत से नवाज रही है। 10 रुपए का नोट बाद में निकलता है, कलेजा पहले निकल जाता है, वो भी मौलवी मौलाना को देने के लिए। लेकिन ये आपका दिल गुर्दा कलेजा है और मजबूत दिल गुर्दे के मालिक है। 10 रुपया का, 20 रुपया का, 100, 50, 500 तक का नोट मिलता है। ये जमल की है, इसलिए बड़े लोगों का ख्याल करता हूँ मैं। बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, अगर आपकी मोहब्बतें शिरकतें मिल गई और मैं समझूंगा ये शेर जहाँ पढ़ूंगा वहाँ कामयाबी मिलेगी। जज़ाकल्लाह। खुशियों के एकदम मुझे ये शेर पढ़ना है और मुझे ये कहना है कि मुझे उन लोगों से एकदम नहीं कहना पड़ता है जो लोग कंजूस हुआ करते हैं, जिसका दिल का दरवाजा बंद रहता है। उन्हीं से मैं कुछ कहता सुनता हूँ जिसके दिल के दरवाजे खुले रहते हैं। अभी मैं पूर्णिया एक जलसे में जा रहा था, पटना स्टेशन में जैसे ही गाड़ी पकड़नी थी, देखा कि वीआईपी क्लास का आदमी बड़ी सी एटीची लेकर के जा रहा था। देखा मुझको तो कहा कि मेरे साथ कहाँ जाएंगे? मैंने कहा पूर्णिया जाना। उसने कहा चलिए ना हजरत, मेरे साथ चलिए, खिलाते पिलाते लेके चलेंगे। मैं भी सोचा चलो अच्छा हो गया, कम से कम रास्ते भर का खाना खर्चा बच जाएगा। कसम से पूर्णिया तक कुछ नहीं खिलाया। पूर्णिया पहुंचे तो 20 रुपए की मूंगफली लिया और उसमें से एक मूंगफली उठा के तोड़ के दिया, बोला कि लीजिए मौलवी साहब खाइए, हमारे साथ रहिएगा तो ऐसे ही खाते पीते रहिएगा। तो मैं उन लोगों से एकदम नहीं कुछ कहता हूँ जो लोग इस तरह के लोग होते हैं। बस आपके दिल के दरवाजे खुले हैं, आपकी जबान आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप कुछ सुनना चाहते हैं। मैंने सुना है बुजुर्गों को कहते जमाने से, मैंने सुना है बुजुर्गों को कहते जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। खुशियों के गीत गाओ, सरकार आ रहे हैं। सरकार दो जहां के, सरकार दो जहां के, विलादत कीजिए करे। सरकार दो जहां के, विलादत कीजिए करे। सरकार दो जहां के, मुस्कुराओ, जी भर के मुस्कुराओ, जो सरकारी आ रहे हैं। जी भर के
मुस्कुराओ सरकार आ रहे हैं जीवन में मुस्कुराओ सरकार आ रहे हैं। मैंने कहा था ना 10-20 नहीं 50-20 मिलता है, मैं 50 रुपए बड़े नोट की बड़ी बहुत मोहब्बत से लेता हूँ। यकीन नहीं आता है तो आजमा करके देख लीजिएगा, जरा दिल लगाइए। बस कोटि कोटि बनाओ मस्तक सकल पर जाजरम हे दीन मधु दयान दी अभिनंदनम सुस्वागतम सायमम शायमम जन्म तिथि ददश रबिलो अपुलम शुभ मंगलम प्रतिबालो की प्रतिमाति सुंदरम तीर्थवम स्वर्ग सम्मतन अति पावनम धन विदुष शोभितम अरुवादि ज्योति जन्मस्तरम सर्वजन आध्याय प्रियतवान वसुम साहतम सोल्जिम दुर्गम प्रकाशि चिरमनोहर मंगलम सर्वमनः शीतल छवि महिप्रिय दर्शनम तारी परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम चतुर्वेद सिद्धि को फारूक को बनिया है आत्मा श्री हसनाए सत्कुटुंबकम बोल दीजिए सुभान अल्लाह। फिलहाल कादिर नहीं, एक शब्द नहीं समझ में आया, एक लफ्ज और एक लफ्ज नहीं समझ में आया, जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे हो। मैं कहूँगा आपको समझ में आए ना आए, आप कहोगे ये क्या है तो उलमाए अहले सुन्नत जवाब देंगे। फिलहाल कादिर नहीं की तरफ से ये हिमायत करते हुए बोलेंगे कि जनाब ये वही है जो बरेली के ताजदार ने आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था नज़ीरों का फीना सरी मिसले तूने शुद्ध पैदा जाना जगराज को है तुझको लहे दूसरा जाना बस खामे खामे नवाए रसा आए तज मेरी नाए रंग मेरा इरशाद याहिबा नातिक था नाचारी पड़ा जाना। कहना ये चाहूंगा हजरात थोड़ी देर मोहब्बत से बैठिए, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा मोहब्बत का दरिया बहा के चला जाऊं, प्यार का गंगा बहा के चला जाऊं, प्रेम का सागर तुम्हारे बीच में दे के चला जाऊं, एक ऐसे नबी का जिक्र करके चला जाऊंगा जिस नबी के उठने का जवाब नहीं है, बैठने का जवाब नहीं है, चलने फिरने का जवाब नहीं है, हाथ जिसम तो ठाका नहीं कर दिया मौजे बहरे समाहत मिला गुजराम जिस नबी की आंख मुबारक का जवाब नहीं है, जिसको देखा ये मूसा से पूछे कोई आंख वालों की हिम्मत मिला गुजराम जिस नबी के पाँव मुकद्दस का जवाब नहीं है, खाई पुराने खाते गुजर की कसम उस कपड़े पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम जिस नबी के जुल्फे मुहब्बत का जवाब नहीं है, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा सुबह आरिफ पे उतारते हैं सितारे के सो हजरात नबी की मीरास सजाए हुए बैठे हैं, नबी का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं हजरात। हम और आप कुरान की आयत पढ़ते हैं अब जातुम मिनल्लाह नूर व किताबुम मुबीन तहकीक की आ गया तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब। दूसरी आयत पढ़ते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला तहकीक से अल्लाह ने मुमिनों पर एहसान फरमाया तो उनमें एक रसूल भेज दिया। लेकिन हजरात ये तो हमारे धर्म की किताब कहती है, ये तो हमारे धर्म की पुस्तक कहती है, ये हमारा मिजाज कहता है, ये हमारा नजरिया कहता है, ये हमारा ख्याल कहता है, ये हमारे घर में कहा करते हैं। लेकिन आज ये मैं आपको प्यादाने वतन की किताब से पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ, सनातन शास्त्र धर्म की किताब से सुनाना चाहता हूँ और बताना ही चाहता हूँ ए जनाब जहाँ हमारे नबी का जिक्र हमारे नबी की मिलाद की बातें और मिलाद के तफसीरे हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताब में हुआ है, वहीं दीगर मज़ाहिब की किताबों में हुआ है और हमारे कुरान के अल्फाज में हदीस के अल्फाज में इस्लामी लिटरेचर में और फिक़ह की किताबों में मुस्तफा का जिक्र तो मिलता ही है। आज़ान में मुस्तफा का जिक्र, नमाज में मुस्तफा का जिक्र, दुरूद व सलाम में मुस्तफा का जिक्र, मिंबर और मेहराब से मुस्तफा का जिक्र। लेकिन आज ये आप कहोगे फिलहाल कादिर नहीं में सिर्फ हमारे धर्म में नबी का जिक्र है, नहीं बल्कि हर धर्म की किताबों में, हर धर्म के ग्रंथों में, हर धर्म के पुस्तकों में नबी का जिक्र मिल जाया करता है। कादिर नहीं में कोई दलील, कोई सनद, कोई सबूत, आगे मैं मंत्र पढ़ता हूँ। ओम भादर में देश को भादर देश कोटक छति सभा नंबर 370 श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14, 15 पर अंतिम महाऋषि के पदार्पण की भविष्यवाणी यानी विलादत रसूल का जिक्र इस तौर पर मिलता है जैसे कुरान में मिलता है एक आग या नूर और एक रोशन किताब और एक जगह मिलता है कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब उसमें रसूल भेजा। इसी तरह से भादर देश कोटक छति में नबी की विलादत का जिक्र होता है। आप उसको हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताब से मुलाहजा कीजिए। बस भादर देश कोटक छति सफा नंबर 370 को पढ़ करके आपके माथे की निगाहों के सामने रख देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ ओम हरिओम। ओम का मतलब ईश्वर, ओम ईश्वर, ओम का मतलब ईश्वर, ओम अवतार न्यास पुरीदम पृथ्वी मध्य अन्य से भारत मलवन सवाल
स्वानम तेज बहादुर सर्वमा महापुरुषम पुरुषोत्तम शंभने स्थानम गृहे विष्णुयस सोमथ्या गर्भमाधतम पृथ्वी पार बहारम कर्क ग्रहण तमुस्यतम परंपरागत परवाय तबे बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात आइए मैं इसका माना और भाव और इसका ट्रांसलेशन करके आपको समझाना चाहता हूँ। ओम का मतलब ईश्वर, ओम का मतलब रब्बे जुलजलाल, ओम का मतलब खालिक कायनात, पूरी कायनात का बनाने वाला, पूरी कायनात को पैदा करने वाला, पूरी जहान को बनाने वाला, वो रचनाकार है, वो परवरदिगार है जिसने पूरी कायनात की सृष्टि की है और दुनिया को बनाया है। वो परवरदिगार है, वो खालिक कायनात मालिक कायनात है, ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन पे आएगा, जो बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा, शक्ति का ये आलम होगा। उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को वापस बुला लेगा, उंगली का इशारा करेगा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम कर देगा, उंगली का इशारा करेगा, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देगा, उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को भुलाएगा, उंगली का इशारा करेगा, शजर हजर को अपने कदमों पे झुका देगा, उंगली का इशारा करेगा, सारी कायनात छुट्टी हुई नजर आएगी। जभी तो यूपी का वखार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, बरेली का अहमद रजा खान, क्या मोहब्बत से बोल दो जमलपुर का हुजूर मुसलमान, बरेली के अहमद रजा खान पूरी दुनिया की आंखों में आके डाल के बताना चाहते हैं, अर्श पे दायरा छेड़छाड़, अर्श पे तो धाम धाम, अरे काम जिधर लगाइए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दीदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, वाह माशाअल्लाह। हज़रात ये तो मेरे नबी की उंगली है। हज़रात पूरी दुनिया के सामने चैलेंज करता हो तुम्हें तन्हा जवाब देने के लिए फेदाउल कादरी नईमी हर मिंबर पे हर स्टेज पे खड़ा रहेगा। मेरी नबी की उंगली का कोई जवाब पेश करे तो मेरे सामने खड़ा होकर के कोई कह दे कि मेरे नबी की उंगली के अंदर कितने कमालात हैं। हज़रात उन कमालात में से एक कमाल यह है कि मेरे नबी की उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी हुआ था। जंग के मौके पर पानी खत्म हो गया था। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है, पीने के लिए पानी नहीं है, वजू के लिए पानी नहीं है, जानवर को पिलाने के लिए पानी नहीं है। मुस्तफा ने लोटा मंगवाया, इसमें अपनी उंगली डाली और उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी होने लगा। तारीख बताती है, इतिहास गवाह है, साक्षी है और दुनिया कहने पर मजबूर है। मुस्तफा की उंगली से इतना चश्मा निकला था, इतना पानी निकला था, जितने सहाबाए कराम थे सारे पानी पी गए। पानी बचा का बचा रह गया, 10 बर्तन भर गए, लबालक भर गए और पानी बचा का बचा रह गया। और उसके बाद जानवरों को पिला दिया गया, पानी झूठा दूर रह गया। उसके बाद मेरे आका पूरी दुनिया के लोगों के सामने आला हजरत दुनिया के लोगों को मिजाज को ये बता करके दुनिया के लोगों को परागंदा जहन को साफ कर रहे थे और बता रहे थे औलिया है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर नदियां किताबे रहमत में जारी। नबी की उंगली का ये आलम है। आप कहोगे ये तो अपने धर्म की बात करते हो, अपने मिजाज और अपने नजरिए की बात करते हो, लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ। अयोध्या का पंडित उठता है, मैं नबी का भी उंगली का कमाल देखता है और कहता है, ए जनाब नबी की तारीफ करने के लिए आप तन्हा नहीं है, आप अकेले नहीं है, मुझे भी नबी की तारीफ करने दीजिए। तो वेद प्रकाश नारायण उठता है, उसके बाद कहता है, संपूर्ण करमशील, संपूर्ण करमशील मोहम्मद के साथी है, संसार में सोशील मोहम्मद के साथी है, मोहम्मद के बातें है। और ये जनाब नबी की उंगली इतनी इस कदर बा कमाल है, इस कदर कमाल और खूबी का मालिक है। मेरे नबी की उंगली का ये आलम है, संपूर्ण करमशील उंगली 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 से जिसने चंद्रमा दो भागी में किए, शक्ति में बेमासिल मोहम्मद की जात है, मोहम्मद के बात है।
اور حضرات ابھی یہ کہتے کہتے وید پرکاش نارائن جی ایودھیا سے بھی بیٹھے بھی نہیں تھے تب تک کہ دیو گھر کا پنڈت اٹھتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے یہ کہتا ہے اے فدا القادر نعیمی, نبی کی تعریف دنیا کر رہی ہے, زمانہ کر رہا ہے, ہر آدمی نبی کی تعریف کر رہا ہے, مجھے بھی نبی کی تعریف کرنے دو, اس لیے کہ نبی کی تعریف کروں گا زمانے میں عزت بھی جائے گی, دنیا میں شہرت بھی جائے گی, اور اگر مصطفیٰ کے عشق میں ڈھل گیا اور ایمان سے مشرف ہو گیا تو یہاں شہرت ملے گی, بروز حشر مصطفیٰ کے قدموں میں جنت ملے گی. اس لیے مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تب تک کہ جو گھر کا پنڈت اٹھ کے کہتا ہے اے جناب نبی کی تعریف کرنے کے لیے مجھے بھی تھوڑا سا وقت دے دو. میں نے کہا آپ بھی کچھ نبی کی شان میں بولیے. اس نے کہا کام کرت اور محمد 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 محمد. محمد کے دیوانے ہیں تو بول دو سبحان اللہ. آگے سے پیچھے دائیں سے بائیں ہر آدمی بول دیجیے سبحان اللہ, اور پیچھے والے لہر کے بول دو سبحان اللہ. محمد محمد بن تو کام ہے رے, برکھا بن برکھا بن ساگر کان بھرے, ساگر کان بھرے, لچھمی 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 بن آدر کان کرے, ماتا بن ماتا بن بھوجن کان دھرے. بھجن چالو ہے لیکن نہیں نبی کا ذکر چالو ہے. ذرا دل لگائیے, محبت سے سنیے. ابھی تک یہ دیو گھر کا پنڈت بول رہا تھا, لیکن اب آئیے وید پرکاش کے بعد اور ایک پنڈت اٹھتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے اے جناب جس طرح سے تم نبی کی تعریف کر کے خدا تک پہنچنا چاہتے ہو, ہم بھی رام کی بھکتی کر کے, ہم رام بھکت ہیں تو رام کی بھکتی کر کے اس ایک خدا تک, ایک ایشور تک پہنچنا چاہتے ہیں. حضرات ہم کتنے نبی کے دیوانے ہیں اور عاشق مصطفیٰ ہیں, نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم سب ایک خدا کو مانتے ہیں اور ایک خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کا وسیلہ, مصطفیٰ کی ذات کو وسیلہ بنا کر کے ایک خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں. یوں ہی ہندو سناتن شاشن دھرم کے لوگ رام کی بھکتی کر کے ایک خدا تک, ایک ایشور تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو رام کی بھکتی کرتے کرتے وہ یوں کہنے لگے کام کرت اور لوگ کمایا جگت نہ آیا رام, کام کرت اور لوگ کمایا جگت نہ آیا رام. جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس. رام ہر ایک جگ میں آئے پر کانوں نے پہچانا, رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا. تکتے تکتے ہو گئے بوڑھے دھرتی آکاش, جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس. حضرات ہم نفرت کی باتیں نہیں کیا کرتے ہیں, ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی, ایک دھاگے میں سمٹ کر کے, ایک دھاگے میں, ایک دسترخوان پہ, ایک پلیٹ فارم پہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہماری سنسکرتی ہے, یہی ہماری تہذیب و تمدن ہے, یہی ہماری ریتی رواج ہے, یہی ہمارا رسم و رواج ہے, یہی ہمارا کلچر ہے. کل بھی ہم ایک تھے, ہم ایکتا کی بات کرتے ہیں, اکھنڈتا کی بات کرتے ہیں, پیار پریم کا سندیش دیتے ہیں. اس لیے کہ کبیر داس جی کہتے ہیں اگر تمہارے اندر پیار پریم نہیں ہے, مانوتا باقی نہیں ہے, تو تم پھر انسان نہیں ہو, اور انسان نہیں ہو تو مسلمان نہیں ہو. آج بھی گورکھپور کے دھام سے اور جل سمادھی سے, آج بھی گورکھپور کے دھام سے اور جل سمادھی سے کبیر داس جی آج سے 550 سال کے پرانے بزرگ ہیں, صوفی سنت ہیں اور مہان کبیر ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے وانی بولیے من کا پاک ہو اور کرے آپ ہو شیتل ہوئے کبیرا, آپ ہو شیتل ہوئے
حضرات یہ کون کبیر داس جی؟ وہ کبیر داس ہے جو ہندو کہے یہ ہمارے ہیں، مسلم کہے ہمارے ہیں، سکھ عیسائی کہے جنہیں یہ ہمارے ہیں، اس لیے کہ انہیں بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، چھوٹ چھاٹ کو نہیں دیکھا ہے، وہ اختلافات میں گھر کر کے ایک کمیونٹی کا آدمی نہیں بنا ہے، بلکہ وہ سمودائے کے درمیان عزت اور باوقار آدمی گزرا ہے، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی کو ایک درشٹی سے، ایک نگاہ سے، ایک نظریے سے دیکھا ہے۔ حضرات کہنا یہ چاہوں گا خدا ایک ہے اور اس ایک کی پرارتھنا کرنی ہے، اس ایک خدا تک پہنچنا ہے، اس ایک خدا کی پرارتھنا کر کے ایک رب کو منا کر کے جنت اور سورگ پراپت کرنا ہے۔ تو حضرات آئیے میں آپ کو اس حوالے سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اور منتر پڑھ کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرات آئیے میں آپ کو ایک منتر سناتا ہوں، منتر کا نام گایتری منتر ہے، اور اس منتر کو بڑے بڑے اسلوکوں میں اور بڑے بڑے ودوانوں نے، بڑے بڑے پنڈتوں نے، بڑے بڑے آچاریوں نے اپنے اپنے کتابوں میں درج کیا ہے، لکھا ہے اور انکت کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ یہ جناب یہ نبی کی شان میں اس قدر لاجواب پوائنٹ ہے اور اس قدر خوبصورت تحریر ہے کہ جو دیکھے اسے اس پر عاشق ہو جائے، دیوانہ وار ہو جائے، فدا ہو جائے۔ حضرات وہ تحریر ہے، یدا یدا ہی دھرم سے گلاؤ نلبھوتی بھار ابھیت دھانم دھرم سے تدات نام نے سرجام ہم تھی ترانائے سادھونا وناشے چدشیتام دھرم ستھاپنارتھائے سموامی یوگے یوگے۔ شریمد بھاگوت گیتا اکھنڈ 4 شلوک نمبر 7-8۔ اس کا معنی ہوا ہے بھارت ونشی ہدایت کا مطلب جب بھی جہاں کہیں جب جب دھرم کا نقصان ہونے لگتا ہے تب تب میں اوتار لیتا ہوں، تب تب میں اوتار لیتا ہوں، بھکتوں کی حفاظت کرتا ہوں، یہ دل کی ہلاکت کرتا ہوں اور دھرم کی دوبارہ تصدیق کرنے کے لیے میں ہر دور میں، ہر کال میں، ہر زمانے میں، ہر یگ میں میں بعض انسانی شکل و صورت میں ظاہر ہوتا ہوں۔ اور حضرات 12 نبی نور کی صورت آنے کے وقت میاں نبی انسان بن کر کے آیا ہے، انسانی لبادے میں آیا ہے، انسانی شکل و صورت میں پیدا ہوا ہے۔ اور حضرات یہ شریمد بھاگوت گیتا کا یہ شلوک بتا رہا ہے کہ میں انسانی شکل و صورت میں پیدا ہو جاؤں گا، میں انسانی شکل و صورت میں آؤں گا۔ اور حضرات رات کے سناٹے میں، دن کے اجالے میں یہ کام کرنے والا اور اس کام کو انجام دینے والا کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال ہے، پیغمبر دو جہان ہے، رسول اکرم ہے، جو نے گرتوں کو اٹھایا ہے، روتوں کو ہنسایا ہے، بلکتوں کو دلاسا دیا ہے، غمزدوں کو مجدے جافرہ سنایا ہے، یتیموں کے سر پر پیار کا ہاتھ رکھا ہے، بیواؤں کے سروں پر عزت و وقار کا تاج رکھا ہے، گرتوں کو سنبھالا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مظلوم کی فریاد کو پہنچا ہے، مظلوم کی امداد کیا ہے۔ میرا پیغمبر ایسا پیغمبر ہے جو بے سہاروں کو سہارا دیا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہے ہم سبوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے میرے دفعوں کا سہارا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو، نبی کی تاریخ سننے کے لیے بیٹھے ہو تو کشورا متھورا کاشی پور کا ایک پنڈت برہمن کلاس کا آدمی اٹھتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے جگت میں کملیش بھائی جگت میں سب سے بڑے دھنیواد مچل کے بولو، جگت میں سب سے بڑے دھنوان، جگت میں سب سے بڑے دھنوان محمد سب سے بڑے ذیشان، محمد سب سے بڑے ہیں مہان۔ در وقت ضرورت پڑ جائے تو عاشق دے دیں گے سب جان، محمد سب سے بڑے دھنوان۔ اچھا آپ میں سے کوئی ہے جو نعرہ لگا سکتا ہے؟ وارڈ پرتیاشی ہیں۔ اچھا ایک بات ہے کہ ابھی لوگ سارے نیتا لوگ دکھائی دیں گے، جہاں ملیے سلام نمسکار، اس کے بعد چمتکار ہونے کے بعد، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ آئے ہیں پرتیاشی وہ ہماری بزم میں آئے ہیں، میں ان کو پیار پریم کا بھاونا ویکت کرتا ہوں اور اس کو میں اس رب ذوالجلال سے ایک مالک سے پرارتھنا کرتا ہوں، پروردگار تیرے پیارے محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں، بس اس محفل کی برکت سے اگر یہ بندے کامیاب ہو گئے، جیت گئے، وجے پراپت کر لیا تو یہ آپ کو بھول نہیں پائیں گے۔ اے میرے پروردگار بس ان لوگوں کے منو کامنا کو پورا فرما دینا، ان لوگوں کے دل کے مقصد کو پورا فرما دینا، اور ان لوگوں کے جب یہ لوگ وجے
प्राप्त कर जाएं, जब ये लोग जीत जाएं और दुनिया के सामने ये लोग माला और मलार्पण हो जाएं और ये लोग दुनिया के सामने जीत हासिल करके आए, फिर ये कौम की सेवा और सामान्य लोगों की सेवा और तमाम पब्लिक की सेवा करके ये लोगों का आभार व्यक्त करें कि हमने आपका साथ दिया है, आपने हमारा साथ दिया है। अब ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा। जरा हम कदम बढ़ाते हैं, जरा तुम भी कदम बढ़ाओ हज़रात इस अंदाज में। हालांकि पहले के कुछ लोग थे जो कभी कभी हालचाल पूछने के लिए आ जाया करते थे। एक गांव में हसीब भाई एक मुखिया जी पहुंचे, कहा कि 2 साल आपने जिताया है, 2 बार 2 टर्म में हमको जिताया है, अब की बार हमको जिता दीजिए, हम बहुत विकास का काम करेंगे। नरेश भाई सुनिएगा, कमलेश भाई, अब की बार हमको जिता दीजिए तो बहुत काम करेंगे। कहा चुप रहो, अभी तक कोनो काम नहीं किया है। कहा ना अब की बार जिता दीजिए तो बहुत कुछ काम करेंगे। कहा देखो हमारे मोहल्ले में कब्रिस्तान की दीवार टूटी है, गिरी हुई है, अभी तो कुछ काम किया है। कहा कि नहीं अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब की बार जिता दीजिए तो एक कब्रिस्तान क्या, घर घर कब्रिस्तान। तो मुझे ऐसे लोगों से एकदम बिल्कुल नहीं मतलब रहता है, ऐसे लोगों से मतलब रहता है जो दुख सुख में काम आता हो। और हमें उम्मीद और विश्वास यकीन है कि ये जो हमारे नेतागण हैं, प्रत्याशी हैं, ये कामयाब होकर के आएंगे, आपके दुख सुख में जरूर काम आएंगे। इसलिए कि ये लोकल नेता ही हुआ करते हैं जो आपकी खबर दूर तक पहुंचाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। आपको कहीं थाने में जरूरत पड़े, आपको कहीं कोर्ट कचहरी में अदालत में जरूरत पड़े, ये लोग निशाना बशाना खड़े हुआ करते हैं, आपकी जरूरत को समझते हैं, आपके घरों के हालात को समझते हैं। बड़े लोग MP MLA वो आपको पहुंच से बाहर होते हैं, नेटवर्क एरिया से बाहर होते हैं, लेकिन यही लोग होते हैं जो आपके दुख सुख में, आपकी मुसीबतों में काम आते हैं। बस आप लोगों का प्यार प्रेम, इसी तरह से भावना, इसी तरह से ख्यालात एक दूसरे से मिलता जुलता रहना चाहिए। आइए मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, मोहम्मद सबसे बड़े धनवान, मोहम्मद सबसे बड़े धनवान, सबसे बढ़कर जग में बढ़कर, सबसे बढ़कर उनकी निराली शान, जगत में सबसे बड़े हैं महान। वाक़या एक सुनाओ, नबी की गरिमा बतलाओ, नबी क्यों जग में बड़े हैं आज सबको समझाओ, नबी क्यों जग में बड़े हैं आज सबको बतलाओ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला ने इस बाबू ने 20 रुपए से नवाजा मौला ताला। अगर ये बच्चा पढ़ने के लिए हजरत हाफिज कारी मौलाना हामिद रजा के पास जाता हो तो आलिम बनाए, और अगर कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता हो तो अल्लाह IAS IPS कोई अधिकारी बना दे। जरा मोहब्बत से, अगर नबी की विलादत की बरकत से ये दुआ कबूल हो गई, बच्चा कामयाब हो जाएगा। लगाइए मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। नबी है सबसे बड़े हैं महान, वाक़या एक सुनाओ, नबी की गरिमा बतलाओ, नबी क्यों जग में बड़े हैं आज सबको बतलाओ, नबी क्यों जग में बड़े हैं आज सबको समझाओ। एक दफा अबू जहल मुट्ठी में कंकड़ियों को छुपा कर ले आया, उसने कहा मेरे भतीजे मेरी मुट्ठी में है क्या बतलाओ जरा, अगर तूने सचमुच बतलाया तो मैं तुझ पे ईमान ले आऊंगा। नबी का एक इशारा पाकर कंकड़ में पढ़ा कर पत्थर हो गया मुसलमान, जगत में सबसे बड़े हैं महान, मोहम्मद सबसे बड़े धनवान। हज़रत नबी इतने महान हैं, इतने अज़ीमुश्शान हैं, जिस नबी की मिलाद मनाने के लिए हम और आप बैठे हैं, नबी का तज़किरा और तबसरा करते हैं और हज़रत नबी की तारीफ करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो हज़रत उसी पैगंबर की तारीफ सुनिए। ये हम और आप हिंदुस्तान शाश्वत धर्म की किताबों से सुन रहे थे। आइए, अगर हर धर्म की किताब में नबी का तज़किरा मिलता हो, तबसरा मिलता हो, हर आदमी और हर धार्मिक व्यक्ति ने नबी की शान में कुछ कहा
लिखा हो, हज़रत अल-फज़ल मा शहादत शाहिदत बिही आदा, सच वही है जिसके बारे में दुश्मन गवाही दे दे। यानी सच्चाई वो हुआ करती है, दुश्मन कहे कि हाँ ये आदमी जो है अच्छा है, तो लोग उसको माने ना माने, जमाना मानेगा। अगर किसी के बारे में ये कह दे हाँ ये सच्चा है, हाँ ये अच्छा है, अगर दुश्मन कह दे हाँ ये पड़ोसी नेक है, तो जमाना मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हजरत आपने मेरे नबी की तारीफ की है, बेगारों ने नबी की तारीफ की है, दुश्मनों ने मोहम्मद को इल्जाम लगाने से अपने आप को रोका है और कहा है मोहम्मद को कैसे मैं झूठा कहो, मोहम्मद को कैसे मैं खाइन कहो, मोहम्मद तो अमीन है, मोहम्मद तो सादिक है और ऐसे सच्चे हैं कि प्यारे आला हजरत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हज़रत इसलिए आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे नबी कितने महान हैं, इतने अज़ीम शान हैं। उस महान पुरुष का नाम मोहम्मद है। हज़रत जो आज से लगभग 1450 साल पहले मक्का की धरती पर तशरीफ लाए और मक्का की धरती पर आमना के गोद में अब्दुल्लाह का लफ्ते जिगर बनकर, हलीमा के दिल के टुकड़े बनकर के और अब्दुल मुत्तलिब का नूरे नजर बनकर के आमना के गोद में जब जलवाबार हुए। हज़रत विलादत का जिक्र हमारे धर्म में और हमारे हिंदू भाइयों के धर्म की किताबों में मिल जाया करता है। तो हज़रत ये मैं बताना चाहता हूँ मेरा नबी इस शान से पैदा होगा और वो किताबों में लिखा है मेरा नबी ऐसा महान होगा, यानी एक अंतिम अवतार, एक पैगंबर, एक लास्ट प्रोफेट जब वो आएगा इस शान से आएगा, जब अंतिम अवतार आएगा तो उसका ये आलम होगा, उसका ये मर्तबा होगा, उसका ये मकाम मनसब होगा। अंतिम अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा और शंभल स्थान में पैदा होगा, विष्णु यश के घर में पैदा होगा, सोमती के गर्भ से जन्म लेगा और वो नबी इस शान से पैदा होगा कि हाथ का इशारा करेगा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम कर देगा। और हज़रत सच ये है कि मेरे मुस्तफा हजरत हलीमा के झूले में झूल रहे हैं, हजरत हलीमा बचपने का आलम में हजरत हलीमा झूला झूला रही है, मैं नबी को झूले में सुला दिया गया है। हजरत हलीमा कभी कभी झूला देखने के लिए आती है कि झूला झूल रहा है या रुक गया है, हजरत हलीमा बचपने के आलम में मैं नबी का बचपना है देखने के लिए आती है तो क्या देखती है कि नबी का झूला यूं ही झूल रहा है जैसे मैं झूला के गई थी, ऐसा लग रहा था फरिश्ते झूले झूला रहे हैं। और हजरत हलीमा की आंखें तंग रह गई ये देख करके कि मोहम्मद की उंगली जिधर घूम रही थी उधर आसमान का चांद घूम रहा था, मोहम्मद की उंगली दाएं जा रही थी, आसमान का चांद दाएं जा रहा था, मोहम्मद की उंगली बाएं जा रही थी, आसमान का चांद दाएं जा रहा था, मोहम्मद की उंगली सिरहाने जा रही थी और आसमान का चांद सिरहाने की तरफ जा रहा था, मोहम्मद की उंगली बाएं की तरफ जा रहा था, आसमान का चांद भी बाएं की तरफ जा रहा था। गोया आसमान का चांद मोहम्मद के इशारे का खिलौना बन गया था। तभी तो आला हजरत इसकी तर्जमानी करके दुनिया के लोगों के आंखों में आंखें डाल के बता रहे हैं चांद झुका बाजी भर उंगली उठाते महज में क्या ही चलता था इशारों पर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मरहबा। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नारा लगाया है हसीबुद्दीन भाई ने, बहुत अच्छा नारा लगाया। मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन नारे के जवाब से शिकवा गिला है। ऐसा नारा मत लगाइए जिसे सुनकर कल कोई बदअकीदा ये कह करके गुजर जाए कि कल के जमलकी के प्रोग्राम में सुन्नियों के नारे में कम नहीं था, जबकि मजमा में कम नहीं था। ऐसा नारा लगा दीजिए, हाँ हाँ ऐसा नारा लगा दीजिए कि अमेरिकी कुत्तों को इस्लाम समझ में आ जाए और नस्ल के दलालों को और भारत के भटकुल ईमान बदअकीदों को मालूम मुसलमान जिंदा है, क्योंकि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद। मरहबा। 14 नंबर वार्ड से भाई नरेश साहब की तरफ से 50 रुपए का फिर इनाम आया है जो ऑर्डर प्रत्याशी है। वाह 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 वाह, ये आप मोहब्बतें हैं, शिरकतें हैं, ये आप तमाम लोग प्यार प्रेम से नवाज रहे हैं। ये प्यार प्रेम बना रहता है और इसी के लिए कबीरदास जी सन 1540 में पैदा हुए और 1518 में जाके उनका 1540 में पैदा हुए और 1618 में उनका देहांत हुआ, गोरखपुर में उनका देहांत हुआ और वो पैदा हुए
बनारस में पैदा हुए, गोरखपुर में उनका देहांत हुआ और उसके बाद फिर आज भी उनका जल समाधि गोरखपुर में है। और वो कहते हैं कि अगर बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत दौलत कमा लिया है, बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन इस दुनिया में कितने दिन रहना है? ज्यादा से ज्यादा 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 70 साल, 80, 90 साल, 100 साल, उसके बाद तो स्वाहा हो ही जाना है। लेकिन हजरात कहना ही चाहूंगा, वो कहते हैं कि जनाब आप आए हैं इस दुनिया में चले जाएंगे, फिर गुरूर न करना, फिर घमंड न करना, फिर ये न कहना कि हमारे पास इल्म बहुत है, एजुकेशन बहुत है, विद्या बहुत है, फिर गुरूर और घमंड न करना हमारे पास दौलत बहुत है, हमारे पास सर्वत जायदाद प्रॉपर्टी बहुत है, मैं बड़ी संपत्ति का मालिक हूँ, मेरे घर में 4 गाड़ी है, मैं कई कारोबार का मालिक हूँ। बिल्कुल गुरूर ना होना चाहिए और घमंड ना होना चाहिए। इसलिए कि आदमी राजा है, प्रजा है, तंत्र है और प्रजा है, या बादशाह है, अमीर है, दुर्वेश है, फकीर है, सबको इस दुनिया से चला जाना है, तो फिर गुरूर न कर, फिर घमंड न कर। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग तफाते, एक सिंहासन में चले एक बंदे जंजीर कबीरा, बंदे जंजीर। सुभान अल्लाह। ये हमारे 60 साल की उम्र के चाचा हैं, ये बड़ी मोहब्बत से नवाज रहे हैं। सेक्रेटरी साहब हैं, अच्छा रजा कमेटी और रजा जामे मस्जिद के सेक्रेटरी साहब हैं। अल्लाह ताला चाचा की उम्र में बरकत अता फरमाए, सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए, हर आफत मुसीबत से मौला महफूज फरमाए। इमाम साहब की मोहब्बतें मिल रही हैं, जहाँ कहीं जो लोग हैं, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, बस न तीर से, न तलवार से, न खंजर से चला है। ये उलमाए किराम पूरे भारत का भ्रमण और दौरा करके बस पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं। लोगों का इल्जाम होता है इस्लाम कट्टरपंथी सिखाता है, इस्लाम आतंकवादी सिखाता है, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है, इस्लाम दूसरे को तोड़ता है और एक दूसरे के दरमियान नफरत करता है और नफरत की बातें सिखाता है। लेकिन आज आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस्लाम कभी भी तशद्दुद नहीं सिखाता है, इस्लाम कट्टरपंथी का नाम मजहब नहीं है, इस्लाम एक दूसरे को मारने का सबक कभी नहीं देता है। पूरी किताब उठा लीजिए, पूरा ग्रंथ उठा लीजिए, पूरा इस्लामी लिटरेचर उठा लीजिए, कहीं मुस्तफा ने अपनी जानिब से हाथ उठाया हो तो कोई पेश करे, मुस्तफा ने तलवार उठाई हो तो पेश करे, मुस्तफा ने किसी को मारा हो तो पेश करे, मेरे पैगंबर ने किसी को तकलीफ दिया हो तो पेश करे। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हारी जात से तुम्हारे चरिंद परिंद को, चूटियों तक को किसी को तकलीफ न पहुंचे। नबी फरमाते हैं तुम्हारी जात से किसी को कोई कष्ट न पहुंचे, कोई दुख न पहुंचे, यहाँ तक कि तुम्हारे घर के दाएं जानिब जो 40 घर है वो तुम्हारा पड़ोसी है, जो बाएं जानिब 40 घर है वो तुम्हारा पड़ोसी है, जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में जो चारों लोग बसते हैं 40 घर की आबादी तक वो तुम्हारे पड़ोसी हैं। और तुम्हारी पड़ोसी को तुम्हारी जात से, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारे भाषण से, तुम्हारे विचारधारा से कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई दुख न पहुंचना चाहिए। ये कौन सिखाता है? ये इस्लाम सिखाता है, ये मजहब इस्लाम बताता है, ये हमारा पैगंबर सिखाता है। किसी को दुख न दिया करो, किसी को तकलीफ में न देखा करो। यहाँ तक अगर कोई दुख में है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, कोई मुसीबत में गिरा हुआ है, तो उसकी इयादत के लिए जाया करो। ये मुस्तफा के उसके घर में जाकर के उसकी खैरियत मालूम किया करो। ये मुस्तफा की सुन्नत है। सबसे बड़ी दुश्मन है और इस्लाम का भी दुश्मन है, पैगंबर इस्लाम का भी दुश्मन है। यहूदिया बुढ़िया है जो रोजाना कूड़ा करके फेंका करती थी, लेकिन इस्लाम का कैरेक्टर देखो और पैगंबर इस्लाम बानी इस्लाम का कैरेक्टर देखो। मुस्तफा उस हर दिन फेंकने वाले कूड़ा करके फेंकने वाले बुढ़िया की खैरियत मालूम करने के लिए उसके दरवाजे भी पहुंचते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं तो पता चलता है इस घर की मालिका बुढ़िया बीमार है। मुस्तफा ने अपने जानिसार साहबी को भेजा और खैरियत मालूम करने के बाद कहा कि इजाजत है तो मैं आ जाओ, इजाजत है तो मैं उसे जाकर के उनकी खैरियत मालूम कर लूं। इजाजत दी गई, मुस्तफा पहुंचे, उनके सरूर पे तेल डाला, मुस्तफा ने उसकी खैरियत मालूम की। उसकी थोड़ी देर खिदमत करने के बाद पूछा अम्मी जान अब बताओ तबीयत कैसी है, अब बताओ कुछ आराम मिला है? हजरात जो दुश्मनों से दुर्व्यवहार करने के बजाय अच्छा व्यवहार करता है
وہ میرا پیغمبر ہے. جو درست ویوہار کرنے کے بجائے اچھا ویوہار سکھاتا ہے وہ میرا اسلام ہے, مذہب مہذب ہے, وہ میرا پیغام ہے اور میرے وہ نبی کا پیغام ہے. اس لیے اسی وقت بڑھیا جو اٹھنے کی حالت میں رہے تھے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے. کہا محمد میں نے سن رکھا تھا کہ محمد ابن عبداللہ ہے, جادوگر ہے, میں نے سنا تھا کاہن ہے, میں نے سنا ہے کہ اس کی سنتا ہے سنتا رہ جاتا ہے, جو اس کی من موہنی صورت دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے, جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے, پھر اس کے محبت کا اسیر ہو جاتا ہے. اے یا محمد اگر تم محمد ہو, اگر تیرا اخلاق یہ ہے, تیرا کیریکٹر یہ ہے, تو میں صرف دل سے تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہوں اور پورے کعبے کے لوگوں کو مکے کے در و دیوار کو گواہ بنا کر کے کہتی ہوں کہ جب محمد ابن عبداللہ اس حیثیت کا مالک ہے, اس کیریکٹر کا مالک ہے اور اس طرح سے حسن اخلاق پیش کرنا جانتا ہے تو یہ انسان اچھا ہو سکتا ہے, برا نہیں ہو سکتا ہے. یہ انسان سچا ہے, برا نہیں ہو سکتا ہے. جو اسے برا کہے وہ برا ہو جائے گا, جو اسے برا تسلیم کرے وہ برا ہو جائے گا, جو اس کے بارے میں بکواس کرے میں اس کے خلاف آواز بلند کروں گے. اس لیے صرف دل سے میں کلمہ پڑھتی ہوں اور محمد کے غلاموں میں اپنا نام شامل کر لیتی ہوں. بڑھیا نے کلمہ پڑھتے تھے, اسلام قبول کر لیا.